तो आज हम कविता जी से बात करेंगे कि उन्हें ये विला बनाने में कितना टाइम लगा, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और क्या आइडिया आया जो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन और ये यूनिक चीज़ें यूज़ करी अपने विला के अंदर। तो मैम आपको ये विला बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल। 2 साल लग गए? इतना टाइम क्यों लगा? ये इंटीरियर करने में या सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लानिंग में और ये स्ट्रक्चर खड़ा करने में, या इंटीरियर में आपको ये टाइम लगा 2 साल का? 11 जनवरी 2019 में हमने इसकी फाउंडेशन स्टोन ले ली। 19 में? 2019 में। ओके। और फरवरी 2021 में कंप्लीट हो गया। ओके। इंक्लूडिंग पूरे रिटेनिंग वॉल, द सुपर स्ट्रक्चर, द कंस्ट्रक्शन, द इंटीरियर डिजाइनिंग, द फर्नीचर, एवरीथिंग। नॉर्मली 6 मंथ्स तो रिटेनिंग वॉल में ही लग जाते हैं। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. So if I would rate it, because I am myself an interior designer, and 2 years is a very 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 fast work. मैम आई थिंक यहाँ से 12 या 15 किलोमीटर पे ही मसूरी है, तो आपने यही लोकेशन क्यों पिक करी? आप मसूरी के आसपास क्यों नहीं आपने कोई विला अपना बनाया? ये लोकेशन ही क्यों? ये लोकेशन 3,500 फीट पर है. Mussoorie is around 4,500 to 5,000. अब and Dehradun is around 2,500. यहाँ पर we are facing reserve forest. The 2 rivers are down below our property. This opportunity wherein your reach to the airport is just 1 hour, and Max Hospital is just 15 minutes away from here. Best Mall is just 20 minutes away. अब now when we are staying here, it's a homestay. Apart from me staying here, my husband also lives here. I have a family here. So approach to the hospital and all this airport and everything also has to be looked into. Right. So घूमने के लिए ठीक है मसूरी जाओ, but रहने के लिए plus the beauty which you won't get in Mussoorie also. Where will you get this river? I too love being in the water. I love water and nature, reserve forest. For me, they are more like a balm to me, like the Japanese concept, no? Nature balm, forest balm. And myself, my husband, because he's in forest department, so we always want and we love being in nature and in forest and around forest. So if I would have made a property in Mussoorie, it would have been the middle of the concrete jungle, and here we have the natural forest. So मैम आपके दिमाग में ये ब्लू डोर नाम ही क्यों आया? आपने ये नाम कैसे पिक किया? मतलब आपके दिमाग में कोई और नाम क्यों नहीं आया? Blue door is a gateway to happiness, health, heaven, paradise. And in Hyderabad, when we were posted, I had gone to a resort there by the name of Blue Door. Okay. And from that day, I had just imagined that one day when I make my house, it has to have this blue. And blue itself symbolizes calmness, serenity, happiness. So that concept came. मैम ये विला आई थिंक जो मेन रोड है उससे काफ़ी अंदर है, तो जो टूरिस्ट है वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? उसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम भी लगता होगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती होंगी, तो वो किस तरीके से इस विला तक पहुँच सकते हैं? कोई लैंडमार्क या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो ईजिली इस विला तक पहुँच सकें? यानी अभी हमने एक अंतारा सीनियर लिविंग करके कुरकुल एरिया ऑफ दिस देहरादून आउटस्कर्ट्स इज अ वेरी फेमस लैंडमार्क. इट्स अ 5-star सीनियर लिविंग. वहाँ से भी जस्ट 7 minutes अवे, और वहाँ से यहाँ तक का हमने अपनी वेबसाइट पे रूट मैप बना लिया. ओके. Because the car comes up to I property, so it's not that road connectivity is not there. You also must have seen the vehicle you came in reached right inside the property. Right. And unless you are away from the main road, you won't have the forest. So you have to have nature. When you want to be in nature, you want to be in forest, you have to have little movement away from the main road, no? मैम मैंने इस प्रॉपर्टी में जब एंटर हुआ तो मैंने रूम्स के आगे कुछ स्पाइडरमैन, बटरफ्लाई, कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई देखी. उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? वो क्या है? वो क्यों लगाया गया? देखो, बर्ड्स एंड फ्लावर्स तो इट्स वेरी कॉमन, सभी यूज़ करते हैं. वी वांटेड टू
be different and actually frankly telling you, इतने beautiful insects, इतने सुंदर light green, red, naturally यहाँ पर है, which don't harm you, which have beauty in them. I thought why not use the theme, the names of insects rather than birds, and उनको भी तो थोड़ी वैल्यू मिल जाएगी. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. और मैंने अभी देखा कि यहाँ एक बोट सी भी रखी हुई है. इसके पीछे का क्या रीज़न है? यहाँ कोई टाइटेनिक वाला पोस्ट तो नहीं हो गया था जिसकी वजह से ये बोट रखी गई हो? अब बाहर आएगी ना देहरादून में तो आपको दे देंगे. अच्छा. नहीं मैम, उसके अंदर वेट भी काफ़ी है, कहीं प्लांट का वेट की वजह से डूब ना जाए वो बोट. नहीं. आंध्रा में जब हम विजयवाड़ा में पोस्टेड थे तो आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ बोट इन माय हाउस विद अ नेट. तो बीच पे मैं कभी जैसे जाती थी, आई वुड कीप सर्चिंग फॉर अ नाइस पीस टू कीप इट इन माय प्लेस, बिकॉज ब्लू डोर, ब्लू बोट, ब्लू वाटर, ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है और एक थीम के साथ सिंक भी करता है. कहाँ आप बोट देखेंगे घर पे कभी? It has to have character, no? बिल्कुल. That is what you are also interested in knowing, inquisitive, कि ये क्या है, and you won't believe getting it from Vijayawada all the way, transporting, bringing it here, talking to the fishermen, bargaining for the boat. You're bargaining for a boat. It is a task. It is a task, and I enjoy all this. मैम, फूड की जो सर्विसेज है, जस्ट लाइक यहाँ पे भी खाना उसी तरीके से सर्व होता है जैसे हम घर में खाते हैं. तो मतलब क्या डिफरेंस है घर के खाने में और यहाँ से जो खाना सर्व होता है उसमें? क्या डिफरेंस, जो टूरिस्ट यहाँ आता है उसको क्या फेस करने को मिलता होगा या क्या फील करता होगा वो डिफरेंस? देखो, आप खुद भी यहाँ 2 दिन से रह रहे हैं. बिल्कुल. सो अगर आपने ये महसूस किया होगा कि दिस इज नॉट जस्ट अ होम स्टे, दिस इज अ होम स्टे विद अ फैसिलिटी ऑफ रिजॉर्ट एंड अ होम स्टे विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ होम. टाइमिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी चॉइसेस की फ्लेक्सिबिलिटी. मेरे एक नीस और उसके हस्बैंड थे, आज से 15 साल पहले वाइट फ्लावर हॉल में वो गए थे. उस टाइम में वाइट फ्लावर हॉल वाज कॉस्टिंग 15,000 a day, the room there. White Flower Hall, everybody knows about it. And this homestay in that, near to that, were charging 17,000 a day. And then he told me, मामी, मैंने यहाँ आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हम सोचते थे कि वो ऐसा क्या है कि वो इतना कॉस्टली था. मैंने कहा ऐसा भी क्या खास बात थी कि भाई 5 स्टार 7 स्टार से कॉस्टली उस टाइम में, एंड यू लव्ड इट. सिर्फ कि जाते ही उनको हमें कोजी हॉट वाटर बॉटल्स मिली, ठंड थी इतनी. देन हमसे पूछा गया क्या खाना है, मैंने कुछ बोला, मेरी वाइफ ने कुछ बोला, हमारे लिए अलग खाना बना एंड यूनिक डिशेस बनी. हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं. We felt like the king and queen of the place, and we were made so comfortable. The host came and met us, and then he discussed and he told us about the place. And then he was telling me कि मामी आप तो उससे तो 100 times ज़्यादा warmth and love and home feel दे रही हो अपनी property. Why are you undercharging? I said कि I am not doing this business for money. Apart from money, of course, I need for the maintenance of the place, but it's a passion. Hospitality is in my genes, in my blood. I feel I'm good at it. I can interact, I can socialize with people well and connect. Within seconds, I connect with people. And I see the world, when the tourists come to me, when the guests come to me, I see the world through their eyes. कि दुनिया कैसी है. और मैं उनको चाहती हूँ कि यहाँ पे वो पूरे वो कंफर्ट फील करें जो उसने वहाँ पे वाइट फ्लावर के पास वाले होम स्टे में किया था. बट स्टिल, बिकॉज आई एम कैटरिंग टू मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनकी पॉकेट, मतलब उनको ये भी फील नहीं होना चाहिए कि भाई इतनी ज़्यादा कॉस्टली प्लेस है, फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं. सो ठीक है, आई एम लिटिल अबाउट, इट्स अ प्रीमियम प्रॉपर्टी एंड प्राइस्ड फाइन, एंड आई गिव द बेस्ट ऑफ कंफर्ट. जब चाहे आप चाय मांगिए, जब चाहे आप कॉफ़ी मांगिए. I have 2 chefs and 2 cooks, 4 people cooking food. अंतारा सीनियर लिविंग में जो कुक था वो मेरे पास है. लेमन ट्री में काम कर रहा था वो शेफ है मेरे पास. सो दे मेक बेस्ट ऑफ रिजॉर्ट फूड टू यू, जिसमें कि आप होम के कंफर्ट में वो आपके वहाँ से पूछेगा कि भाई क्या बनाना है, एंड वट एवर यू वॉन्ट दे मेक इट फॉर यू फ्रेश. आई डोंट स्टोर, आई डोंट गेट थिंग्स इन बल्क. जो हमारी किचन में हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, हम ऑर्गेनिक आटा यूज़ करते हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गिविंग टू माई गेस्ट.
तो आपको टेस्ट में भी, यू मस्ट हैव सीन द डिफरेंस इन द टेस्ट. द क्वालिटी ऑफ फूड इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव माई सेल्फ इन माई हाउस. सो मैम, आपने इतना बताया तो ये भी बता दो कि अगर टूरिस्ट यहाँ आता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? ये तो कुछ चीजें टूरिस्ट के ऊपर भी छोड़ दो. लेट द टूरिस्ट फाइंड आउट, लेट द टूरिस्ट टॉक टू मी. नहीं, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है ना, यही चीज़ें देख के थोड़ा सा उनको भी होता है कि हाँ हमें जाना चाहिए या क्या करना चाहिए. तो मेरे को लगा क्या पता आप वो भी बता दो तो हमें भी पता चल जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा. देखो, पर डे 25,000 मैरिएट करता है. 18,000 जेपी करता है. वी आर बिटवीन 7 and 9. ओके. Depending on the weekday or weekend, the number of people, which includes the breakfast as well. और फूड भी मैं देती हूँ अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन पे. इतना बढ़िया बारबेक्यू, ग्रिल, चाइनीज कुजीन, कॉन्टिनेंटल, सब. आप तो ये आई एम मेकिंग यू फील व्हाट आई द गेस्ट फील हियर, राइट? बिल्कुल. तो ये हो गई फूड की बातें. अब हम थोड़ी इंटीरियर की बातें कर लें. तो मैम, आपने इतनी छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से पिक करी, ये चीज़ें कहाँ से लेके आए हो? मतलब अगर हम किसी भी कोने को देख लें तो आपने कोई कोना नहीं छोड़ा है जहाँ पे कुछ आपने ना लगाया हो. तो ये चीज़ें आपने कहाँ से पिक करी? ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको यहाँ पे ये लगाना है, लाइक इतनी बड़ी ये पेंटिंग, ये कहाँ से लेके आया? ये सारी चीज़ों का ना आइडिया, मैं फ्रैंकली तुम बताओ, सोचोगे कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ. रात को 3 बजे जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं ना, बेस्ट ऑफ आइडियाज आते हैं. मतलब आप लोग समझ रहे हो, अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो मैम कितने रात को बैठ के काम करें, दिन में कुछ नहीं होता. नहीं. जो कंपनियां कहती है ना कि सुबह 9 से 5 ऑफिस आके काम करें, वो गलत कहती हैं. उन्हें ये कहना चाहिए रात को 11 से 5 आओ, फिर काम करो तो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम होगा. तो जितना भी मेरा क्रिएटिव थॉट है वो रात को 3 बजे आता है. एंड it is a catch, I'm telling you. Everybody when they are sleeping in their unconscious mind, they get to feel कि अब हमारा क्या चल रहा है लाइफ में, क्या क्रिएटिव है, क्या सोचना है, क्या कर रहा है. फर्क उसमें पड़ जाता है जो उठ के उसको पेन डाउन कर ले उस टाइम. So I keep a pen and diary and I get up in the night whenever a thought comes in my mind and I note it down. एक तो मैंने सोचा शायद मे भी इसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ता हो. बाकी ऑफ कोर्स I have traveled a lot. कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें हम प्रोक्योर कर लेते हैं. फ्रेंड सर्कल इतना है. अब जैसे ये एलिफेंट है, देखिए, ये मिस्टर चांद की खुद की खींची हुई है. एंड ही रिस्क्ड हिज लाइफ क्लिकिंग दिस फोटो मे बी अराउंड 25 years बैक. एक बार देखो आप इस फोटो को. 25 years बैक उन्होंने ये फोटो जब खींची थी, एंड ही वॉज लाइक मे बी हार्डली 20 feet अवे फ्रॉम दिस एलिफेंट. ही वॉज रिस्किंग हिज लाइफ. It has a story. Every piece of mine. See, you can get costlier things than this also. But every piece of mine has a story. When I collect, it has a story. मतलब हर एक चीज़ के पीछे एक राज है. अगर हम उस रेडियो के पीछे का भी जाने तो कहीं वो 3 Idiot वाला राज तो नहीं है. 3 Idiot कह सकते हैं, या पीके वाला कोई राज तो नहीं है मैम. वो भी रेडियो कहीं कोई आया हो और छोड़ गया हो गलती से. नहीं, ये मेरी एक फ्रेंड रीमा ने मुझे गिफ्ट किया था. ओके. चाइना से. ओके. अच्छा. चाइना. मेड इन चाइना है. ओके. जहाँ से, उसी सिटी से जहाँ से कोविड शुरू हुआ था. ओहो. एंड यू नो, मेरी फ्रेंड से अगर आप मिलेंगे तो वो खुद में एक कैरेक्टर है. फैंटा पी के वो टिप्सी हो जाती है और कोई टूटे हुए ग्लास तक से वो कुछ भी आवाज बना सकती है, कुछ भी यूज कर सकती है. टूटी हुई लकड़ी को भी वो शी कैन क्रिएट मैजिक विद इट. सो मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत गिफ्टेड है. देन अ फ्रेंड ऑफ माइन, काव्या, शी हैज हेल्प मी विद द इंटीरियर्स अ लॉट. दे हैव दिस मनका इंटीरियर डिजाइनिंग शोरूम. तो उनकी पूरी टीम, उनके पेंटर्स, आई हैड टाइल्स, एवरीथिंग शी हेल्प मी विद. बहुत अच्छा. अब ये देखिए आप लैम्प, इसके ऊपर का जो ये कवर बना हुआ है, ये लकड़ी का लैम्प है. इसका जो ये कवर बना हुआ है, ये मेरी चुन्नी से बना हुआ है. एंड दिस इज स्टार टर्टल. उसके रेयर रहता है ये मेरे स्टूल्स पुराने स्टूल्स खराब हो गए थे, मैंने उनको रीडू करके ये करा दिया उसके. मतलब कहते हैं ना कि नेचर के साथ छेड़खानी भी नहीं करनी. हाँ. और नेचर से बनी चीज़ों को रीयूज कैसे कर सकते हो वो आपने पूरा एक दिखा रखा है नमूना.
फिर मेरठ में मेरी सिस्टर इन लॉ की वर्कशॉप है, तो वी हैव अ टीम ऑफ पेंटर्स, कारपेंटर्स एंड ऑल, ब्रास वर्क, सारा काम व्हाटएवर वी वांट वी गेट इट डन देयर। वी हैव वेरी गुड टीम। तो आप तो यहीं रहते होगे, तो आपको तो बहुत मज़ा आता होगा इस नेचर, इस एटमॉस्फेयर में रहने में। हाँ, मज़ा आता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। इवन इफ आई एम अलोन, आई डोंट फील अलोन, यू नो, बिकॉज when my mom was here for a month with me, वो तो रोज सुबह ओवर टी she would be watching the cloud movement। अच्छा, आप बादल यहाँ आ गए, अच्छा ये यहाँ तक आ गए हैं। Then I would, अब still I keep telling her वो फोन, मम्मी बादल का स्टेटस ये है, आप आ जाओ। बिकॉज आपका होराइजन इतना दिख रहा है ना 180 डिग्रीज का। One in a review, one of the lady called Jyoti, she asked Google, why don't you give 7-star option? Because I want to rate 7-star to the view of this property, and she liked my food more than Pandara Road in Delhi. It's a review on Google, you can see. तो फिर मैंने मालूम किया, I think Pandara Road पे तो काफ़ी अच्छा खाना बनता है, and then I was really thankful to her for, you know, and then one girl, she's a doctor, उसको उसके हस्बैंड ने सरप्राइज दिया यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, and you won't believe, उसने जो रिव्यू में लिखा कि इत्तेफाक, जिंदगी इत्तेफाक है, ब्लू डोर पे आना एक इत्तेफाक था, और कविता जी से मिलना तो कोई भी एक इत्तेफाक था, वो भी एक इत्तेफाक था, आपसे मिलना भी एक इत्तेफाक था, और आप लोगों का आना भी एक इत्तेफाक होगा। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन कि इतनी सारी कन्वर्सेशन के बाद अगर ब्लू डोर की कोई एक ऐसी चीज रह गई हो जो मेरे से स्किप हो गई हो, आप बताना चाहते हो, जो की पॉइंट हो, आप बता सकते हो। मैं तो यही चाहूँगी कि आप यहाँ आएँ, उसको फील करें और मेरे साथ इंटरैक्ट करें। लेट मी हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग गेस्ट कमिंग हियर, स्टेइंग विद मी। वी कुड हैव गुड मोमेंट्स, गुड मेमोरीज, बिकॉज देखो कोविड के बाद ये तो पता चल गया है, लाइफ के अगले पल का कुछ नहीं पता मैं ऐसा। आई डोंट वांट टू हाईलाइट माय प्लेस और एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। आई डोंट वांट टू यू नो, मैं कोई वो नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं तो कहती हूँ लाइफ के मोमेंट्स को लिव करो, राइट, लिव मोमेंट्स ऑफ लाइफ, सी नेचर, लर्न फ्रॉम नेचर, नेचर शुड बी योर मदर टीचर। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की हमेशा पोएट्री, नेचर, ही वुड ऑलवेज से नेचर इज द मदर, नेचर इज द टीचर। कम हियर, फील द नेचर, गेट रिजुविनेटेड। क्योंकि आप दिल्ली में या कहीं गुड़गांव में इतने बिजी स्केड्यूल में आप भूल ही जाते हैं कि आपको अपने लिए कुछ नेचर से भी सीखना चाहिए। हर चीज़ नेचुरली आती है फिर आपको, यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी बैड थिंग हैपनिंग टू यू और एनीथिंग गुड हैपनिंग टू यू। सब चीज़ यू वोंट गेट शॉक्स, आप नेचर से कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कभी कभी यू शुड कम, यू शुड एंजॉय, यू शुड फील थ्रू माई आईज व्हाट दिस वर्ल्ड इज हियर। तो इसी के साथ हम ये कन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू कविता मैम, आपने इतने अच्छे से ब्लू डोर को एक्सप्लेन किया। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप भी एक बार ब्लू डोर पे ज़रूर आएँ और यहाँ पर रह के एक बार फील करें, नेचर को भी फील करें, मैम के साथ इंटरेक्ट भी करें। जो आप करना चाहते हैं आपको हर चीज़ मिलेगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ब्लू डोर में ना मिले। तो बाय बाय, धन्यवाद।